Let's begin with the first session, which is on RBI regulatory norms applicable to cooperative banks. I would request CA Rinkesh Shah, sir. Atul bhai. Yes. And Chetan Jagetia, Secretary of the branch, to escort our first faculty to the dais, Mr. Atul Khirwadkar, sir, from Mumbai. Please give him a round of applause. He has traveled all the way from Ahmedabad to Mumbai, Mumbai to Ahmedabad once again. So, thank you so much, sir. I request Chairman of the branch, C. Rinkesh Shah and Chetan, sir, to felicitate the faculty with the memento. I request C. Rinkesh Shah to introduce the faculty. As far as multi-state cooperative bank is concerned, Atul sir practically does not require any introduction because he has played a vital role as far as cooperative bank is concerned. He came all the way from Mumbai. He is ex-CEO of Kalyan Janta Cooperative Bank, which is one of the renowned cooperative bank. Also, ex-CEO of NUCFDC, which is one of the renowned institution as far as cooperative bank is concerned. Sir, there was a huge demand when we, put the name of yours in the brochure. We got the call from the many cooperative banks that, if sir is coming, then we are going to definitely send, the many team members. Actually, we requested each and every cooperative bank to send 2 committee members from their banker. So we got the call, if Atul sir is coming, please allow, to have the 3 members, 4 members from our office. But due to restrictions from our side, we did not allow, sir. Sir, floor is yours. Now you please take the sessions. Thank you, sir. Good morning. लगता है मॉर्निंग गुड नहीं हुई है. Good morning, sirs. It can be little louder. You're all young. I'm an old man, rather a spent force. But then, probably being a banker has a very bad habit of criticizing everything. After coming to this auditorium, I must appreciate the chairman of the Ahmedabad chapter for the kind of thought he has put in, where he has brought 2 warring sections together. One is auditor and the other is banker. I am not aware how many bankers are there. Will it be okay if I talk in English as well as Hindi so that we can gel well? The topic that has been given to me, I avoided preparing a PowerPoint presentation for the simple reason that then we keep on watching the screen here and then we don't talk to each other. It will be my request during the course of my discussion or talk with you to stop me wherever you want that you have a question. So this is a kind of open session. Would like to make it as interesting as possible. तो इंस्टीट्यूट ने ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये सेशन में लाया है. Our interests are different and CA's interests are different. The tough task is to reconcile the interest of CA's and that of a banker. Madam ने ये कहा कि they are going to talk about the audit and all other things, and there was
reference to the corporate governance also. Many of you may not be aware that Reserve Bank of India is now chasing everyone for the corporate governance. It was in 1949, the BR Act was passed, and somewhere in 1966 or 67, the Section 56 as applicable to cooperatives was introduced. For us, the June 2020 was a turning point. Why it was a turning point? Because the Section 56 as then existed was virtually repealed. Not exactly in the term of repealment, but then it exposed the cooperative banks to all the other regulations. And the reference which I was trying to give is that the corporate governance, right from Shaktikanta Das, everybody talked about the corporate governance in the cooperatives. You might be aware, but if you are not aware, do visit the BR Act certain provisions. There are 6 provisions which tell you that the word company, banking company, is equal to a cooperative bank. Wherever the word the banking company has been used, is equally applicable to the cooperative banks. What it means? So those bankers who are sitting here, they are companies as far as the BR Act is concerned. And if they are companies, you are bound to have the corporate governance. So the corporate governance is embedded, but then Reserve Bank of India started chasing the cooperative banks for the corporate governance last couple of years. And this year, on 28 November 2025, Reserve Bank of India came out with the consolidated master directions running into 1,374 pages. And they virtually reworked, जिसको हम कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. मुझे पता नहीं गुजरात में वाइन इज बैंड और वाइन इज नॉट परमिटेड, बट देन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. Why I say this old wine in new bottle? As a chartered accountant, you might be knowing ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना, उनको डूज एंड डोंट्स करके एक लिस्ट दिया जाता है. द फर्स्ट सर्कुलर इज इन 2008. नवंबर 2025 में उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस करके मास्टर डायरेक्शन निकाला है. वही है, डूज एंड डोंट्स, ब्रॉट इट इन अ डिफरेंट बॉटल. व्हाई आई एम गिविंग यू दिस रेफरेंस? For the cooperative banks, life became tough after June 2020, when the ordinance of amending the BR Act was passed. And life became worst for the chartered accountants. In the same breath, I am telling you two things, because I have to do the reconciliation. These two things, the life of CA has become worse. When I say this, I am going to give you free advice in certain areas. As a chartered accountant, you may refuse to take it. कभी भी cooperative bank में director करके मत जाना. Don't go. Why? I'll tell you. They'll make you like theirs. Now, when they will make you like this, it would mean that you would be entering into a compromising area. And as a chartered accountant, you are not supposed to make a compromise. You are not supposed to make the compromise. What law says and what bank should be doing. It's simple. What is written here and what you are doing. मेरा एक simple सवाल है. Every bank does the statutory audit every year. Every bank beyond a certain size faces the Reserve Bank of India inspections.
Why does Reserve Bank of India inspection comes out with the points which even the statutory or internal auditors are not in a position to focus? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर या कॉन्करेंट ऑडिटर जो आउटसोर्स किए जाते हैं वो बैंक के बन जाते हैं। आपने वो देखी होगी मुन्ना भाई MBBS। वो मुन्ना भाई MBBS में एक प्रिंसिपल सबको समझाया गया है, कोई भी डॉक्टर अपनी बेटी पे या अपने बेटे पे सर्जरी नहीं करता है, क्योंकि अस्थाना को उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा है कि फॉर अ डॉक्टर अ पेशेंट इज अ बॉडी, द मोमेंट रिलेशन कम्स अप इमोशंस कम्स अप, हाथ स्टेडी होने चाहिए। सो यू आर ऑल डॉक्टर अस्थानाज। To tell you what I am trying to drive is, you have to be impartial. I would have liked to focus on the PowerPoint presentation where I would have spoken for almost 90 minutes on the Reserve Bank of India regulations, which the CAs must follow. मज़ा नहीं है। क्यों नहीं मज़ा? Every CA reads these master directions. So every CA is aware. I am just going to make a passing reference. I am not going to spend much of a time on that. My focus will be going beyond these regulatory guidelines. Interpretation beyond what the Reserve Bank of India wants to say. तो मैंने पहले चीज़ क्लियर कर दी. I have made it very clear that as an auditor, you are not friend, philosopher and guide. If a cooperative banker tells you that you are our friend, philosopher, guide, don't trust. The moment he addresses you that you are their friend, philosopher and guide, समझ लो कुछ ना कुछ पंगा है. Something that they are not trying to open up. और अभी तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट है ना, रैंडमली फाइल नहीं करता है, तुमने जो किया हुआ ऑडिट है उसको ही स्क्रूटिनी में अगर लेके आते हैं तो बैंक अगर गलती करेगा तो रिजर्व बैंक उसको पनिशमेंट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख 10 लाख आजकल पनिशमेंट का भी कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग हमारे मेंबर को क्या बोलते हैं बताऊं, ये रिजर्व बैंक के ना एकदम गरीब हो गया इसलिए हमसे पैसा निकालते हैं। क्यों हुआ ऐसा? वाई दिस इज हैपेंड? क्योंकि रिजर्व बैंक जब पेनल्टी करता है तो वो पेनल्टी में वो क्या लिखते हैं, देयर इज वन सेंटेंस, इफ यू रीड एनी ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ पेनल्टी यू विल फाइंड दैट दिस पेनल्टी विच इज लेविड ऑन द पर्टिकुलर बैंक शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक पीरियड। इसका मतलब बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर हम लोग कोई भाष्य नहीं कर रहे हैं। वही सेंटेंस बैंक पकड़ती है और बोलती है अरे यार हमारा फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, छोटा मोटा गलती हो जाता है, रिजर्व बैंक को भी पैसे निकालने हैं इसलिए पेनल्टी होती है। एक ज़माना था, यानी 2020 के पहले का ज़माना, या रादर 2017 का, 17 के पहले का, 17 की मैं 17 क्यों बोल रहा हूँ इसका भी मैं रेफरेंस आपको दूंगा। ये 2017 के पहले का ज़माना, पेनल्टी आ गई यानी डर लगता था बैंकर को। यहाँ पे जितने भी बैंकर बैठे हैं अगर पुराने हैं तो जानते होंगे कि पेनल्टी आ गया डर लगता था कि रन लगेगा। आजकल ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे मेंबर भी टफ हो गए, तुमने उनको बिल्कुल टफ कर दिया है, अरे पेनल्टी विल्टी कुछ नहीं होता है। और रिजर्व बैंक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैंकों को सुधारे कैसे, आसान रास्ता उन्होंने निकालना। व्हाट इज़ द इजी वे आउट? ये जो ऑडिट करने वाला बंदा है ना उसको ही गोली मारो। आप लोग सब बैठे हो ऑडिट करने वाले, योर लाइफ इज बिकमिंग वर्स्ट। बैंक का लाइफ टफ हो गया है लेकिन योर लाइफ इज बिकमिंग वर्स्ट। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया regulations applicable to the urban cooperative bank, Reserve Bank of India's regulations
रेगुलेटरी नॉर्म्स एप्लीकेबल टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। मेरा ये कहना है कि बैंकों के सामने आपको ज़्यादा चिंता करनी है सीए लोगों को, और सीए जब चिंता करेगा तो बैंक को भी चिंता करने के लिए वो फोर्स करेगा। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे जितने भी सीए हैं वो ये जानना चाहेंगे कि वो टायर 1 क्लासिफिकेशन क्या है, आईरैक नॉर्म्स क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या है, ब्रांच ओपनिंग लाइसेंस की एंट्री पॉइंट नॉर्म्स क्या है। 20-25 सर्कुलर से प्रायोरिटी सेक्टर के नॉर्म्स क्या है, आप सब जानते हैं। तो उसमें हम लोग समय नहीं गवाएंगे, बिकॉज आई सिंसियरली बिलीव दैट the Reserve Bank of India has been issuing these norms openly and publicly. मेरा फोकस आज सीए लोगों के ऊपर होगा और मुझे वो फोकस करना बहुत आसान है। इसकी वजह ये है कि मैं सीए नहीं हूँ, क्योंकि मैं सीए नहीं हूँ इट्स वेरी इजी फॉर मी टू एडवाइज यू। अब 40-45 साल बैंकिंग में काम करने के बाद वो समझ में आता है कि कौन सा सीए क्या गलती कर रहा है और किस लिए गलती कर रहा है। ये जो किस लिए का सवाल है ना, ये आपको अपने आप को उसका जवाब ढूंढना है, क्योंकि आप किस लिए गलती करते हो। मैं कुछ 10-12 चीज़ें एट द एंड ऑफ द सेशन आपको बताऊंगा कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं ऑडिट में, ये 10-12 चीज़ रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर आगे पकड़ता है। ये जो 10-12 चीज़ें हैं ये हम लोग विल टॉक इन ब्रीफ एट द एंड। फिर भी सेशन जो मेरे पास दिया गया है वो ऐसा है कि रिजर्व बैंक के रेगुलेटरी नॉर्म्स के ऊपर मुझे बात करनी है। तो मेरा एक पक्का मानना है कि रेगुलेटरी लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया है 2020 के बाद में। और 2020 का क्या है उस रेफरेंस, 2020 में बीआर एक्ट अमेंड हुआ था, वो हुआ था सितंबर में, लेकिन उसके पहले नोटिफिकेशन आ गया था। उसके पहले 29 सितंबर 2019 को पीएमसी बैंक का लफड़ा हुआ था। यू ऑल माइट बी नोइंग, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक which cheated the expert CAs also। उन्होंने डबल डेटा रखा था, एक आरबीआई को बताने का, एक पब्लिक को बताने का। कोई पकड़ नहीं सका, 10-11 साल चल रहा था। मेरे दोस्त थे उस बैंक में, बहुत अच्छे, उनका सीईओ भी मेरा दोस्त था। आदमी की नीयत खराब होती है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। सो आउट ऑफ 100 people you will always find one person. You should be, why do you have so much of regulation? Simply because for that one person who plays the spoiler, उसके लिए है। 99 लोग चोरी नहीं करते हैं, लेकिन ताले चाबियां हम इसलिए रखते हैं कि वो एक बंदा जो है वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये जो 2020 में बीआर एक्ट अमेंड हो गया, इट ओपन द पैंडोरास बॉक्स, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। आपको याद होगा, मैं गुजरात आया हूँ, 2003 में माधवपुरा हुआ। अब सब जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पे उस वक्त पढ़ रहे होंगे, लेकिन माधवपुरा हुआ 2003 में। रेगुलेटर इतने डर गए थे उस वक्त कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल कैसे करे। 5 लाख तक का बिजनेस था ना, रजिस्ट्रार लोगों को समझ में आ रहा था क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो ढोल बजाते थे, क्योंकि मैं भी बैंकर हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। हम लोग क्या ढोल बजाते, हम लोग ढोल ये बजाते थे कि हमारे ऊपर ड्यूअल कंट्रोल है। वो रजिस्ट्रार भी 10 चीज़ें पूछता है, आरबीआई भी पूछते हैं, हम किसको किसको देवे। ये तो हमारे लिए बहाना था। अच्छा, कुछ न करने के लिए बहाना था कि बैंक्स आर अंडर ड्यूअल कंट्रोल। ये झूठ था, लेकिन परोसा गया। 3 राज्यों में परोसा गया, 3 राज्यों में। मैं 3 राज्यों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ओनली 3 स्टेट्स हैड अ प्रेजेंस ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। एंड देन देयर आफ्टर 40-50 बैंक्स इन राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
आई डू नॉट नो, ये जो सेशन है ना, इसके ऊपर मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मुझे पता नहीं है, लेकिन आप तमिलनाडु जाओगे तो ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो अभी मैडम ने बताया ना, कोई वास्ता नहीं है। वहाँ पे रजिस्ट्रार बैंक चलाता है, मेंबर्स जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीईओ सब होते हैं, लेकिन बैंक कौन चलाता है? रजिस्ट्रार। किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम लोग? हमारे ही देश में एक राज्य ऐसा है और दूसरा उस माइल्डर राज्य में कहूँगा वेस्ट बंगाल, यू हैव द सेम स्टोरीज। नंबर ऑफ बैंक्स बहुत कम है, 40-50 बैंक है। वी हैव कम फार अवे नाउ। हमारा बिजनेस 9 लाख करोड़ के आसपास है पूरे एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री का। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बिजनेस में रूरल कोऑपरेटिव्स नहीं पकड़ती है, डीसीसीबीज और रूरल कोऑपरेटिव्स नहीं पकड़ती है, तो वो लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 8-9 लाख के करीब है, 8-9 लाख करोड़। हम ग्रो नहीं हो रहे हैं। हमें क्या बहाना मिलता है, हमें क्या वजह मिलती है? हमारे पास ड्यूअल कंट्रोल है, इसलिए हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। झूठ, सबसे बड़ा झूठ। तो इनको पकड़ने वाला बंदा कौन है? बैंक की ग्रोथ, बैंक का डिसिप्लिनरी बिहेवियर, बैंक का ये सब कुछ जो चलता है, उसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराया जाता है? इट स्टार्ट्स विद दिस स्टैट्यूटरी ऑडिटर, देन इंटरनल ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर। दुनिया भर के ऑडिट लगा के रखे, दुनिया भर के, बट देयर इज नो क्वालिटी। कभी रजिस्ट्रार मैडम यहाँ पे बैठी है तो मैं एक एडवांटेज लेता हूँ, एडवांटेज ये लेता हूँ, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, सीए लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू गिव पीनट्स यू गेट मंकीज। अब चने सिंगदाने दोगे तो बंदर मिलेंगे। और ये हमारे सीए भाई लोग हैं ना, किसी भी बैंक ने बोला हमारा ऑडिट करना है, फीस पूछते ही नहीं है, ऑडिट ले लेते हैं, एंड दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिलीवर क्वालिटी वाइज, एंड देन देर आर कॉम्प्रोमाइजेस। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? बेंचमार्क फीस कुछ करेंगे? और ये जो ऑडिटर होता है ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करता है? क्योंकि वो प्रोफेशन में से बाहर निकल चुका है और वो धंधे पे आ गया है, उसको उसका बिजनेस दिखता है। आपको ये प्रोफेशन करना है या बिजनेस करना है, ये तय करो, एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइज। अगले साल भी ऑडिट चाहिए। और इसीलिए मैं 15 मिनट उस चीज़ पे बिताने वाला हूँ जहाँ पे ये जो रिजर्व बैंक के रेगुलेटरी नॉर्म्स है, उसके नॉन कंप्लायंस की आँच तुम पे आने वाली है। बैंक पे आई कोई परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं है? बैंक तो पेनल्टी दे के अगले साल निकल जाएगी, तुम्हारा क्या? तुम्हारे दिन लग सकते हैं। So you have to be very careful when I talk. I try to share whatever that I have learned for the last 45 years from your side, from your safety and even from bankers' safety. क्योंकि आजकल तुम्हारा ग्रोथ, कोऑपरेटिव बैंक का ग्रोथ कौन डिसाइड करता है? It is the regulator who decides your growth. It is the regulator who tells whether you are going to grow or not, whether you are going to get new licenses or not, whether you are going to get permission to use technology or not, whether you are going to improve your technology or not. All those things are with the regulator. और जब मैं फिर रेगुलेटर की तरफ देखता हूं तो वो दो चीजें ढूंढते हैं आप में, ओनली 2 things. One is regulatory comfort, which is not defined. और आजकल नया शब्द उन्होंने लाया है, दैट इज रेगुलेटरी कंसर्न। अगर रेगुलेटर को रेगुलेटरी कंफर्ट बैंक के बारे में नहीं है, वो आपको नया लाइसेंस नहीं देगा। वो जो 6-7 FSWM के पैरामीटर्स है वो आपके है, सब ठीक है, लेकिन आपके बैंक को झोल करने की आदत है, वो आपको नहीं देंगे लाइसेंस। FSWM के पैरामीटर्स नहीं है, रेगुलेटरी कंसर्न है।
दिसंबर 24 का आप ट्रेंड्स एनालिसिस रिपोर्ट देखोगे तो आपको अचरज हो जाएगा. देयर वर हार्डली 28 बैंक्स विच वेर इन डिफिकल्टीज, हार्डली 28 आउट ऑफ 1452. ऑब्जेक्टिव क्या है रिजर्व बैंक का? 2200 बैंकों का आंकड़ा था 2001 में, 2200 एंड ऑड. इट इज़ नाउ अराउंड 1430, 1440, समथिंग लाइक दैट. कम कर दिए. अब ये टाइटर रेगुलेशन 2020 से क्यों आया है? आप मान के चलो कि रिजर्व बैंक के पास मैन पावर नहीं है सेक्टर कंट्रोल करने के लिए, और 500 बैंक कम होंगे. तो एज अ बैंक और एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक और एज एन ऑडिटर ऑफ द बैंक आपको ये सोचना है कि क्या मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ? क्या मेरी बैंक दूर तक चल सकती है? क्या मेरे पास वो ताकत है, सोचने की ताकत है, हैसियत है कि मैं टिक सकता हूँ और आगे भी चल सकता हूँ? तो ये रेगुलेटरी लैंडस्केप जब 2020 में बदला, सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड गोवा, इन चारों राज्यों के जो कोऑपरेटिव एक्ट्स है एक जैसे हैं. प्रोविजन ऊपर नीचे होगा, वर्चुअली सेम, कॉपी पेस्ट है. तो एक ज़माना था, मुझे ये महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पता है इसलिए मैं बोलता हूँ. वहाँ पे एक सेक्शन 110A होता था. गुजरात में कुछ शायद 112 होगा या 109 होगा, जो भी सेक्शन होगा. वो क्या था सेक्शन कि अगर किसी बैंक में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना है तो रजिस्ट्रार को पूछे बगैर रिजर्व बैंक नहीं कर सकती थी. तो 2004 में क्या हो गया? माधवपुरा के बाद में सभी राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक ने बोला कि आप हमारे साथ MOU करो. क्या था MOU में? MOU में ऐसा था कि हम राज्य सरकार को पूछे बगैर इन बैंकों के बारे में कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं. और जिन राज्यों ने MOU नहीं किया, उस राज्य के कोऑपरेटिव बैंक को ग्रो नहीं होने दिया. There were few states who signed the MOU little later. Gujarat, Karnataka, Maharashtra, and including Rajasthan, they signed MOU in 2004 itself. Some of the states took some time. रेगुलेशन चेंज किस तरह से होते गया? 2020 में PMC की वजह से जो प्रोविज़न आई, उसकी वजह से सबकी जिम्मेवारी बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई. आज भी रिजर्व बैंक के पास ना रिसोर्सेस है ना टाइम है. 10 दिन इंस्पेक्शन को आते हैं, 365 दिन का काम देख के जाते हैं. आप स्टैट्यूटरी ऑडिट 2 महीना करते हो, 3 महीना करते हो. यू आर मोर विद द बैंक. और फिर भी जो आप नहीं निकालते हो, आपके ऑब्जर्वेशन नहीं होते, वो रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन में होते हैं. वो आपको पूछते नहीं है, लेकिन वो अभी पूछना चालू करेंगे कि भाई ये हमें दिख रहा है, आपको नहीं दिखा क्या? और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ लो, द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इज नॉट इक्वल टू ऑडिट ऑफ एनी अदर कंपनी. There are several regulatory factors. Even इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस अलग अलग है. अब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ये इंस्पेक्टर को कुछ पता ही नहीं था. अभी कॉलेज ऑफ सुपरविजन आ गया, उसमें कुछ बंदे जाके उनको पढ़ाते हैं. अब वो आएंगे तुम्हारे पास, रिजर्व बैंक के इंस्पेक्टर जब आएंगे तो आपको पूछेंगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या क्या. मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ. AS 15, जहाँ पे आपको ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट की प्रोविज़न करनी पड़ती है. माय बैंक हैड अ वेरी रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. मैंने उनको क्या बताया था? मुझे अक्ल नहीं थी उसकी. हमने उनको बताया था कि हम लोग जब बंदा रिटायर होता है उसको सब पैसे देते हैं, उसका लीव इनकैशमेंट से लेकर के सब लेके. 2005 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 आया था. आप CA लोग हो, आपको तो पता ही होगा. और मैं ये पोजीशन बोल रहा हूँ 2009-10 उसके आसपास की बात कर रहा हूँ. तो हमें छोड़ दिया था हमारे वो जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंट, उन्होंने छोड़ दिया था. चलो ठीक है, कोई बात नहीं है. बट दैट वाज अ वायलेशन. ये किसकी जिम्मेवारी थी? उनकी. लेकिन हमने ज़रा जोर से आवाज़ किया, नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं. उन्होंने क्या देखा?
उन्होंने उनका धंधा देखा कि अगले साल भी ऑडिट करना है यार, किधर रिजर्व बैंक आके देखेगी। अब ये सिचुएशन नहीं है, अब ये सिचुएशन नहीं है। और ये अब सिचुएशन अगर नहीं है तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ये जानना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पहला सर्कुलर रिजर्व बैंक ने निकाला था 2008 में, और दूसरा बड़ा सर्कुलर निकाला 2021 में, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स। बीच में कुछ नहीं, देखा ही नहीं था। अब प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नाम है, वो जो गाइडलाइन निकाला हमारे सबके गले सूख गए, क्योंकि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लिखना है। वो स्टैट्यूटरी ऑर्डर को भी देखना है और इंटरनल ऑर्डर को भी देखना है, बैंक को भी देखना है। These are regulatory changes that have come. Simple and subtle. Simple and subtle. The BR Act has, in fact, changed the entire world of audit, the chartered accountants and the banks. आप तो जानते ही होंगे कि मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा करूँगा, लेकिन करना ज़रूरी है। उल्टा पुल्टा यानी जिस ऑर्डर में मुझे बोलना है वो ऑर्डर छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ये कागज देखे बगैर ही बात कर रहा हूँ। पूरे सेक्टर में एक हल्ला मचा हुआ है, और गुजरात का डेटा राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ था। गुजरात के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का डेटा निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया था। मुझे वो जो याद है वो बोलता हूँ मैं। सम 3275 डायरेक्टर्स were having a tenure over 10 years in the Urban Cooperative Bank and DCCBs, who were disqualified with effect from 1st of August 2025. ये जितने भी एसोसिएशन और ये सब थे ना, ये कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब जो भी मल्टी स्टेट वाला बंदा यहाँ पे अगर बैठा है तो उसको सेंट्रल रजिस्टर ने बुलाया, इधर आओ बेटा, तेरा इलेक्शन होने वाला है, 10 साल के ऊपर जितने बंदे हैं ना कोई कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, दिस इज माय ऑर्डर, सिंपल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी जीआर निकाला है। महाराष्ट्र में एक सेपरेट एंटिटी है, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो उसमें सब रिटायर्ड जॉइंट रजिस्ट्रार्स और रजिस्ट्रार सब काम करते हैं। क्या ऑर्डर निकाला, आप अगर रिटर्निंग ऑफिसर करके किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हो, ये 10 साल वाला बंदा नॉमिनेशन ही नहीं भरे, सिंपल। इम्प्लीमेंट BR Act प्रोविजंस। मल्टी स्टेट के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, दिल्ली से काम चलता है, बाकी के लिए यहाँ से काम चलता है। अब महाराष्ट्र में आया, बाकी के स्टेट फॉलो करेंगे। आपका कोई भी बंदा 10 साल के ऊपर उसका कंटिन्यूस टेन्योर अगर हो गया है तो वो 1 अगस्त 2025 को डिस्क्वालीफाई हो गया। अभी उसके अलग अलग मतलब है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, डिस्क्वालीफाई हो गया मतलब वो बोर्ड में कैसे बैठ रहा है, बैठना ही नहीं चाहिए। कई जगह अलग अलग पंगे हो रहे हैं। ऐसा है, कोई भी बदलाव लाना है तो यू हैव टू गो थ्रू अ ट्रांजिटरी फेज। ये कहीं किसी ने बताया नहीं है, ना रेगुलेशन ने बताया है, ना किसी ने बताया है। 2020 के बाद में, 2020 में जब सेक्शन 56 ओपन हो गया, आपको याद होगा कि ये जो सेक्शन 10A2 का जो प्रोविज़न था 8 साल का, वो 1951 से है। वो हमें 2020 में अप्लाई हो गया, क्योंकि हमें जो प्रोटेक्शन था सेक्शन 56 का वो ख़त्म हो गया। तब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इंस्पेक्शन करती है तो वो लिखते हैं कि ये 15 लोगों के बोर्ड में 4 बंदे ऐसे हैं जिनका 8 साल पूरा हो गया, 6 बंदे ऐसे हैं जिनका 8 साल पूरा हो गया। तो आई यूज्ड टू वर्क इन NBCFDC, सो वी रिप्रेजेंटेड। हम भी पागल थे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ पागल थे, कि पूरे देश भर के फेडरेशन एसोसिएशन दिए कि नहीं ये 8 साल ठीक नहीं, ये वो 10 साल करो, 10 साल करो। आई रोट अ ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेशन टू दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कि ये अमेंडमेंट 10 साल करो। 2 साल के बाद वो 10 साल हो गया। अब 10 साल होने के बाद आए, 10 साल किसने बोला था करने को, वो 20 साल क्यों नहीं किया? कहने का मतलब है हम वी डोंट
लुक बियॉन्ड सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, और उसकी वजह से 10 साल आ गया, अब वो कोई उसको बदल नहीं सकता, क्योंकि आप मिनिस्ट्री के पास जाओगे, नाफकप जाएगा या कोई भी और जाएगा, तो वो पूछेगा कि तुमने ही तो बोला 10 साल करो करके किया ना, अब क्या कर रहे हो। अब रिजर्व बैंक पकड़ पकड़ के मार रही है बैंकों के कि तुम्हारे पास 4 डायरेक्टर है, 10 साल आपका जिनका टेन्योर खत्म हो गया है, और आप इसमें क्या कर रहे हो। सो व्हाट इज द कंप्लायंस, बीआर एक्ट का कंप्लायंस क्या है, ऐसा लिख के छोड़ देते हैं, वो कुछ बोलते नहीं ये बाद में। बात ऐसी है कि समझो ये 10 साल का हुआ 2024 या 25 में, और उसके पहले ही साल में इलेक्शन हो गया, तो एक बैंक के बोर्ड में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बोर्ड इज द वन हु हैव कंप्लीटेड 10 ईयर्स। अभी क्या उन्होंने फ्रेश इलेक्शन लेना है, एक इलेक्शन लेना है, 35-40 लाख का खर्चा होता है बैंक का। एक डिसीजन इसमें लेना चाहिए कि भाई अब आज की जो सिचुएशन है वो जब तक बोर्ड का टर्म खत्म नहीं होता तब तक चलने दो, उसके बाद में नया बोर्ड जब आएगा तब इसमें बदलाव करो। लेकिन इसमें बीच में क्या हो गया दिसंबर में, मैं आपको और एक बोलता हूँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रूल्स है, एज अ बैंकर भी हम लोग पढ़ते नहीं थे, रूल्स ज़्यादा नहीं है, छोटे ही, उसमें सब फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं। वो रूल में उन्होंने एक बदलाव ला दिया, सिंपल चेंज, जो डेफिनेशन होता है ना उसमें एक डेफिनेशन ऐड कर दी, नंबर 1 की इनएलिजिबल डायरेक्टर की डेफिनेशन उसमें ये दिसंबर में ऐड कर दी, दैट दी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू विदाउट गोइंग टू द पार्लियामेंट, बिकॉज रूल्स आर फ्रेम्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। उसमें क्या डेफिनेशन लाई, द पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटिंग द सेक्शन 10A2 प्रोविजंस इज एन इनएलिजिबल डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है, आपके बोर्ड में अगर 10 साल के ऊपर का बंदा है तो वो इनएलिजिबल हो गया। और उसमें एक बदलाव ऐसा लाया है कि ये इनएलिजिबिलिटी कंडीशन जो है कब देखी जाएगी, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड कब रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, एट एवरी इलेक्शन द बोर्ड गेट्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और certain sections of the BR Act are invoked and Reserve Bank of India wants to reconstitute the board, midway also they can do it if there are things which are not correct. अब ये मैंने आपको क्यों बताया, आप सब लोग सीए लोग हो, क्यों बताया ये, क्या वजह है। रिजर्व बैंक के इंस्पेक्टर उनके इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये लिख रहे हैं, आप मुझे बताओ पिछले 4 साल से कितने बैंकों का आपने ऑडिट किया, और आपके ऑडिट में ये आपका कमेंट आया कि तुम्हारी बोर्ड में इतने इतने लोग 10 साल के ऊपर है। आपने किसी ने नहीं किया, आपने किसी ने नहीं किया। यू मस्ट स्टिक टू द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशन एंड नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। दूसरी चीज, आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो क्वालिफिकेशन, यू क्वालिफाई द रिपोर्ट, तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, या फिर आप एम्फेसिस ऑफ द मैटर करके लिखो कि द बोर्ड हैज 5 मेंबर्स हु हैव कंप्लीटेड 10 ईयर्स, तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, क्यों ले रहे हो सर पे, डोंट डू सो। दिस इज द रेगुलेशन which is changing your life, and it's extremely important for you as well as for the banks who are sitting here to look at it in a very proactive way. तो मैं ये कह रहा था कि ड्यूअल कंट्रोल का मामला जब था, ये बीआर एक्ट 2020 में अमेंड होने के बाद में ड्यूअल कंट्रोल खत्म ही हो गया। रिजर्व बैंक ने इलेक्शन छोड़ के किसी भी चीज़ में रजिस्ट्रार का कंसल्टेशन बंद करवा दिया, पूरा बंद करवा दिया। यानी बैंक का बोर्ड अगर सस्पेंड करवाना है वो रजिस्ट्रार को पूछना ही नहीं है, बिकॉज देयर आर पावर्स इन द बीआर एक्ट। और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने बोर्ड सुपरसीड किया, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए, बाद में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया। एक ज़माना था कि दोनों को साथ में बैठ के डिसाइड करना पड़ता था, और रजिस्ट्रार हमेशा, सॉरी बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, रजिस्ट्रार वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए 6-6 महीने लेता था। आई डोंट नो द स्टोरी ऑफ गुजरात, आई एम टॉकिंग ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन महाराष्ट्र। कहने का मतलब क्या है,
वो ड्यूअल कंट्रोल का रोल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो अब क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं हमने ये किया है, बोर्ड सुपरसीड किया, हमने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर, 4 बंदे लेके आते हैं, 1-2 चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके आते हैं, यू बी एडमिनिस्ट्रेटर, रिटायर्ड बैंकर्स लेके आते हैं, पब्लिक सेक्टर में से उठा के लेके आते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल तुम्हारा ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, फिर अभ्युदय बैंक है, पूछो, ये वो कर रहे हैं, ड्यूअल कंट्रोल खत्म कर दिया। इट्स ओनली वन एरिया वेयर योर रजिस्ट्रार इज कंसर्न इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द members of the board. Beyond that, there is registrar has got no control, or constitution, bylaws, approvals, all those things जो है other than banking सब है रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद में रिजर्व बैंक के रेगुलेशंस में आया क्या, तुम्हारा जो बैंक का सीईओ है उसको 15 साल हो गए क्या आपने पूछा? 15 साल अगर तुम्हारे सीईओ को हो गए हैं तो वो जो कई जगह पे कोर्ट में गए हैं सीईओज, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश एंड सम इन राजस्थान। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, वो होने के बावजूद भी रिजर्व बैंक इम्प्लीमेंट कर रहा है, बिकॉज द चैलेंज इज फॉर द गाइडलाइंस विच हैव बीन इशूड, नॉट फॉर इंडिविजुअल बैंक स्पेसिफिक केस। और रिजर्व बैंक का ये कहना है कि जो बैंक कोर्ट में गए हैं उनके लिए हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो नहीं गई है उनके लिए रेगुलेशन हमारा वैलिड है। सो ये जो रेगुलेशन है, तुम अगर किसी बैंक में ऑडिट कर रहे हो तो ये रेगुलेशन आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। मास्टर डायरेक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कमेंट नहीं करते, एस्टिमेशन देखते हैं, बात छोड़ देते हैं। लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से अगर बैंक के पास स्ट्रैटेजी नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टू आस्क यू दीज क्वेश्चंस कि व्हाई यू आर नॉट लुकिंग एट दीज क्रिटिकल एरियाज ऑफ द गवर्नेंस। मैं आईरैक नॉर्म्स के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, बिकॉज मिस्टर गोखले इज गोइंग टू एंगेज यू ऑन आईरैक नॉर्म्स। लेकिन आईरैक नॉर्म्स के बारे में मेरा एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, वही रेगुलेशन है जो रिजर्व बैंक इशू करती है, रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर देखता है, वही रेगुलेशन है, वो आप भी इम्प्लीमेंट करते हो। फिर भी रिजर्व बैंक का जो इंस्पेक्टर होता है वो एनपीए ज़्यादा निकालता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा कि तुमने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, तुमने ऑडिट सर्टिफाई किया है, फिर भी आपने जो एनपीए निकाले उसके अलावा रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर एडिशनल एनपीएस निकालता है। तो होना ही नहीं चाहिए। रेगुलेशन जो है वो वही आप देख रहे हो, वही रिजर्व बैंक का बंदा भी देख रहा है, वही बैंक भी देख रही है। लेकिन पिछले 4-5 सालों में इसमें बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है? आपने देखा होगा कि पेनल्टीज फॉर इनअप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ आईरैक नॉर्म्स आर गेटिंग रिड्यूस। बैंक को ये समझ में आ गया है यार ये एनपीए से पंगा नहीं लेने का, जो भी है उसको क्लासीफाई ढंग से करो, उसका प्रोविजनिंग पूरा करो, प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ाओ। प्रोविजन कवरेज रेशियो के बारे में अगर तुम्हारे रिपोर्ट में कमेंट नहीं है तो आपको ये सोचना है कि क्यों नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट्स दैट द प्रोविजन कवरेज रेशियो शुड बी इन द रेंज ऑफ 70 to 90%। बहुत सारी बैंक है कम है, सो देयर हैज ओवरनाइट तो वो इम्प्लीमेंट होता नहीं है। और एक चीज़ है जिसके बारे में इंस्पेक्शन रिपोर्ट में तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन नहीं होता है, सिंगल पार्टी एक्सपोजर, ग्रुप एक्सपोजर। ये जो सिंगल पार्टी और ग्रुप एक्सपोजर है जिसके बारे में रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन ढूंढते हैं, इंस्पेक्टर्स ढूंढते हैं, तो हमारे सीए फर्म वाले बंदों को क्यों नहीं मिलता है? मिलना तो चाहिए ना, मिलना तो चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। रिजर्व बैंक ने गवर्नेंस के बारे में बहुत सारे गाइडलाइंस निकाले हैं। जो बैंक को आप ऑडिट करते हो उस बैंक के ऑडिट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, सीईओ के अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, दिस इज योर डोमेन।
मैंने देखा है कई बैंकों में रिजर्व बैंकों के गवर्नर से 3 गुना ज़्यादा सैलरी बैंक के सीईओ को है। सवाल तो पूछो, रिजर्व बैंक के गवर्नर को सैलरी कितना है? 50 लाख के आसपास सैलरी है, 3-4 लाख महीने का। रिजर्व बैंक के गवर्नर को एक ही एडवांटेज है, उसको वो मलाबार हिल वाला बंगला मिला है जिसकी कीमत 465 करोड़ है, इज गवर्नमेंट ओन्ड। उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारे बाईपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से स्केल 8 के ऊपर जो सैलरी है वही गवर्नर को है। इट्स नथिंग डिफरेंट। हालांकि आरबीआई की स्केल्स अलग है, अलाउंसेस अलग है। देयर हैज टू बी रीजनेबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर बैंक में पूछो ही मत, क्यों तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू अलग से आते हैं एंड शेयर डूब जाते हैं? क्या हुआ परसों एचडीएफसी बैंक में? चेयरमैन रिजाइंड फॉर इश्यूज नॉट नोन। 7% एचडीएफसी के शेयर्स गिर गए। कॉर्पोरेटिव बैंक में ये होगा नहीं। लेकिन एज एन ऑडिटर तुम्हारी जिम्मेवारी इस तरह है कि आपका ध्यान उसके ऊपर आना बहुत ही ज़रूरी है। डायरेक्टर लोग अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इसके लिए मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शंस के अलावा स्टैट्यूटरी और बाकी के ऑडिट की जो मायने हैं उसमें बहुत ही कम कमेंट्स होते हैं। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बैंक का रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा है? पूछो सवाल, बैंक के पास सवाल इसका जवाब नहीं होगा। बिकॉज देयर इज नो कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री विच इज मेंटेनिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट एग्जिस्ट एंड देन हाउ दे आर डीलिंग विद दैट। लिक्विडिटी, सीआरआर, एसएलआर के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में आजकल वो पनिशमेंट करना चालू कर रहे हैं। तो बहुत सारी बैंक क्या करती है, सीए से सर्टिफिकेशन लेती है। वो सर्टिफिकेशन अगर आप देते हो तो इंश्योर दैट यू डू इट इन एन एब्सोल्युटली करेक्ट मेथड। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, वीकर सेक्शन के लिए भी। और छोटी बैंक जो होती है ना, वो ट्रेजरी के जो मास्टर डायरेक्शंस होते हैं, वो मास्टर डायरेक्शंस के बारे में कई बार गलतियां करते हैं। आजकल कम होता है, लेकिन एक ज़माना था कि यार डिप्रिसिएशन बढ़ गया है, मार्क टू मार्केट लॉसेस बढ़ गए, शिफ्ट कर दो एचटीएम को बीच में ही। हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा होता है? शिफ्टिंग इज अलाउड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर कब? सितंबर। But then auditors don't question them. Beginning of the year is max to max is first quarter. Max to max is first quarter. First quarter के बाद में अगर कोई शिफ्टिंग करवाता है, डंडे बरसाओ। मेरी सीधी बात है। यहाँ पे जो बैंकर्स बैठे हैं वो भी उसके ऊपर देखेंगे। और अभी फोकस जो आ रहा है ना छोटी बैंकों के लिए भी, हालांकि सर्कुलर नहीं है, जिस भी बैंक का 5,000 करोड़ के ऊपर का एसेट बेस है, लोन्स नहीं एसेट बेस, उनको रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। अगर आप किसी बड़े बैंक के लिए ऑडिट करते हो तो उनके रिस्क टेम्पलेट्स क्या है, रिस्क पॉलिसीज़ क्या है, रिस्क कमेटी कितनी बार मिलती है, रिस्क कमेटी में क्या डिसीजंस होते हैं, ये भी देखना आपका काम बन जाता है। Reserve Bank of India will make the chartered accountants gradually responsible for the deficiencies which would be coming in the way. तो जैसे मैंने कहा कि the life of the chartered accountant is becoming extremely difficult and critical. बैंक का लाइफ तो छोड़ो, उनके पास अदर तरीके हैं जीने के, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी उनके साथ लग जाती है। आउटसोर्सिंग के बारे में भी जो गाइडलाइंस है, मास्टर डायरेक्शन तो आपको देखना ही है। सिंपल चीज़ आपको करनी है। अगर आप किसी बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो मास्टर डायरेक्शन अगर आता है तो बैंक को एक काम करने के लिए बोलो। रिजर्व बैंक ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी है, क्या करने के लिए बोला है, तुम क्या कर रहे हो, आस्क देम टू आइडेंटिफाई द गैप्स। योर रोल विल बी ईजियर एंड सिंपल
वेंडर सिलेक्शन की प्रोसेस जो होती है उसके बारे में जो आउटसोर्सिंग का गाइडलाइंस है वो बहुत ही क्रिटिकल हो गया है. यू हैव टू पे सम अटेंशन ऑन दैट. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बोर्ड के बाद में सबसे बड़ी सब कमेटी जो होती है वो ऑडिट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड. आपने देखा होगा कि ऑडिट कमेटी के बारे में बोर्ड ही खुद इतना सीरियस नहीं होता है, बोर्ड का अप्रोच ही सीरियस नहीं होता है. ऑडिट कमेटी यहाँ क्यूरीज आ गए, हो गया क्या सवाल, नहीं हो गए, 3-3 महीने नहीं हो रहे, बोर्ड ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऑडिट कमेटी भी ध्यान नहीं दे रही है. और आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आपको ये भी देखना ज़रूरी बन जाता है कि ऑडिट कमेटी किस तरह से फंक्शन कर रही है. मैं रिस्पेक्ट इंटरनल ऑडिट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ. रिजर्व बैंक जब आती है इंस्पेक्शन के लिए तब वो हमेशा देखती है कि बोर्ड मिनट्स आर द मिरर, इज द मिरर ऑफ हाउ द बैंक इज फंक्शनिंग. एंड इमीडिएटली सेकंड इंपॉर्टेंट मिनट्स वो देखते हैं वो ऑडिट कमेटी के. हालांकि सब्जेक्ट डिसाइडेड है, लेकिन उसमें कई बार सीए फर्म टाइमली रिपोर्ट नहीं देते, वेदर इट इज कॉन्करेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट. और क्लोजर ऑफ द रिपोर्ट सीए छोड़ देते हैं बैंक के ऊपर. वो मत छोड़ो, थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा. कीप द क्लोजर ऑफ द ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांच इन योर हैंड्स. मेरा ये मानना है कि तुम जब ऑडिट करते हो यू हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन, द मैनेजमेंट. दे टेल यू सर्टन थिंग्स, ट्राई टू लुक फॉर द एविडेंसेस. अब रिपोर्ट जब क्लोज होगा, अगर टेक्नोलॉजी से काम करते हो तो रिपोर्ट क्लोजर हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द कंसर्न ऑडिटर. नाउ इफ द कंसर्न ऑडिटर इज नॉट डूइंग, ही इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क फॉर हिज ओन प्रोफेशन. सो दैट हैज टू बी सीन वेरी क्रिटिकली. फ्रॉड रिपोर्टिंग, द टाइम नॉर्म्स, द फॉलोअप, और इसके ऊपर अगर ऑडिट संज्ञान नहीं लेता है तो इट इज़ व्यूड फ्रॉम द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव वेरी क्रिटिकली. बैंक अगर सैफ में है, आज अभी सैफ नहीं है, अभी तो वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में अगर है और अगर आप उस बैंक के ऑडिटर हो तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में दिए गए जो बेंचमार्क्स है, पैरामीटर्स है, उसको वायलेट मत करने दो. आपने देखा होगा कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के पैरामीटर्स बैंक फॉलो नहीं करती है, बैंक को पेनल्टी होती है. कल जाके रिजर्व बैंक आपको पूछेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे. और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी किसी भी बैंक का ऑडिट आपको नहीं लेना है जहाँ पे आपकी कॉस्ट कवर नहीं होती है. प्रॉफिट तो छोड़ो, इफ़ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू कवर द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ योर फर्म ऑफ एन ऑडिट, डोंट एक्सेप्ट इट, बिकॉज यू आर प्लेइंग विथ फायर. आप तो रोज बैंक जाते नहीं हो, महीने में 8 दिन 10 दिन, और जो आपकी टीम होगी वो जाएगी, वो अगर जाके करने वाली है और वो कॉस्ट भी आपकी अगर कवर नहीं होती है, बैंक को बोलो नहीं परवड़ता है, नहीं परवड़ता है. आप सीए मिलके सब इकट्ठा अगर बोलोगे कि देयर हैज टू बी एन एप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन फॉर द सर्विसेज दैट वी आर गिविंग, your revenue will go up and then you will be able to take up additional. जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें बैंक को कुछ परेशानी नहीं है, आपको है, सीए फ्रेटर्निटी को है. दैट दे मस्ट इंश्योर दैट ये जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं इसके ऊपर आपको सजग रहना है. यू हैव टू रिमेन अलर्ट. द न्यू एरिया दैट हैज़ कम अप फॉर तुम्हारा दिमाग खाने के लिए नया एरिया आया है जो 1 अप्रैल से आएगा. रादर रिस्क बेस्ड प्रीमियम, DICC का जो प्रीमियम होगा वो रिस्क बेस्ड होगा. नॉर्म्स उसके आने हैं, कुछ आए हैं, तो आपको ये देखना है. परसों जो एक सर्कुलर आया उसमें क्या किया उन्होंने, डिस्क्लोजर में मॉडिफिकेशन लेके आए हैं वो कि भाई DICC का प्रीमियम इस बैंक ने समय पे दिया है, जो नॉर्म से उसके हिसाब से दिया है. क्योंकि मेरा ये मानना है 12 पैसे का जो प्रीमियम है वो आप 6 पैसे तक ला सकते हो आप, यानी बैंक,
क्योंकि वो कैमल्स रेटिंग में जाएगी तो वो 6 पैसे तक आ सकता है। 2 करोड़ का अगर DICC प्रीमियम जो कॉस्ट बैंक पास ऑन नहीं कर सकती वो 1 करोड़ तक आ सकता है। लेकिन उसके लिए वो जो नंबर्स निकालने वाले हैं वो नंबर्स शायद आपको वेरीफाई करने होंगे। सो दैट इज़ अ न्यू रेगुलेशन दैट यू विल हैव टू लुक इनटू इट, एंड फ्रॉम 1st of April दैट विल बिकम वेरी इफेक्टिव। मेरा ये मानना है कि तुम्हारा एक रोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और ये जो रोल होगा, ये रोल, इसके मायने और इसके परिणाम बदल रहे हैं। Audit is no longer an easy job because the accountability that is now being attached with the audit has gone up in geometric proportion. और इसके लिए वो जो हिंदी में कहावत है ना, न खाया न तोड़ा गिलास तोड़ा 12 आना, ऐसा होने लगेगा। क्योंकि द compensation that you get from the bank or you accept from the bank has no relationship with the responsibility and accountability attached to it. Revisit the norms. और ये अगर आप रिविजिट करोगे तो आपको आपका रोल इतना बदला नज़र में आएगा कि आप पूछो मत। आप किसी भी प्रकार का ऑडिट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ गॉन अप, and when that responsibility has gone up, you need to be very particular. आप जानते ही होंगे कि सर्टिफिकेशन बहुत बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ़ सर्टिफिकेशंस बहुत बढ़ गए हैं। आप अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक के साथ काम करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के चैलेंजेस क्या आए हैं। वो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज उनका कैपिटल का है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली 97-98% बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन ऑपरेशनल रिस्क रेजिलियंस के ऊपर रेगुलेटरी कैपिटल आएगा तब कैपिटल कम पड़ेगा। इसलिए आप जिस बैंक को ऑडिट करते हो उनका कैपिटल 14% के ऊपर CRAR जाता है या नहीं जाता है, ये आपको देखना या उनको पुश करना ज़रूरी है। क्योंकि T3 और T4 बैंक को रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जुलाई 24 में निकाला जिसके ऊपर किसी बैंक ने काम नहीं किया, किसी भी। क्या सर्कुलर है वो सर्कुलर ऐसा है, आइडेंटिफाइंग द ऑपरेशनल रिस्क रेजिलियंस एंड गैप एनालिसिस एंड प्लगिंग दिप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिस्क एंगल। यू आर गोइंग टू हैव ऑपरेशनल रिस्क रेगुलेटरी कैपिटल प्रोविजन दैट विल कम फॉर द बैंक्स। अभी जो बासिल III के नॉर्म्स कमर्शियल बैंक को आए हैं वो धीरे धीरे कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आएंगे। जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई होने के बाद में कोई भी कमर्शियल या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकती। ये बासिल III के नॉर्म्स कमर्शियल बैंक को आ गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आने वाले हैं। अभी तो वो रिस्ट्रिक्टेड है FSW और फाइनेंशियल पैरामीटर्स के नॉर्म्स। डिविडेंड डिक्लेरेशन का पॉलिसी रिजर्व बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है। तो ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द गुड ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज अच्छा काम करने वाले, गलती हो सकती है, गलती के बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है, बिकॉज गलतियां जो होती है वो जेन्युइनली काम करने वाला बंदा ही करता है। यू हैव टू लुक फॉर दी इंटेंशंस बिहाइंड दी एरर्स। एक और चीज़ एज एन ऑडिटर आपको देखना है कि आपको बार बार ये कहना है आपके ऑडिट रिपोर्ट में, जो भी आपको गैप्स दिख रहे हैं यू राइट इन द ऑडिट रिपोर्ट। और भगवान के लिए जो LFIR रिपोर्ट होता है वो बैंक के स्टाफ को भरने के लिए मत बोलो, वो रिजर्व बैंक का भी जूते लेके आने वाली है। अगर LFIR आप बैंक का स्टाफ अगर भरता है तो यू हैव टू रीड वर्ड टू वर्ड। LFIR इज़ अ वेरी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट वेयर यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो चुकी है, जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी वेंडर ढंग का नहीं है, जहाँ पे भी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट नहीं होता है, उसका एनालिसिस नहीं होता है,
जहाँ पे भी आपको लगता है कि बैंक ढंग से काम नहीं कर रही है, सुओ मोटो आप रिजर्व बैंक को लिखो, बच जाओ। मुझे पता है कि आप में से कोई भी ये करने वाला नहीं है, बताना मेरा काम है, सुनना या नहीं सुनना ये आपका काम है, अब इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना ये आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि मेरा ये मानना है ऑडिट इज़ एन एश्योरेंस फंक्शन, और वेल गवर्न अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज ऑलवेज अ पिलर फॉर द सोसाइटी विच इज़ एक्सट्रीमली इसेंशियल एंड नेसेसरी। मैं जैसे मैंने कहा था कि एट द एंड ऑफ माई स्पीच आई नॉट बी टेकिंग मोर देन 10-15 minutes एंड देन आई विल स्टॉप, विल अलाउ यू टू आस्क मी क्वेश्चंस। मेरा ये मानना है कि दो चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। कई बार रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन में ऐसी चीज़ें निकलती है जो ऑडिटर के ध्यान में ही नहीं आती, या ऑडिटर उसके ऊपर साइलेंट रहता है। अगर आप किसी बैंक के ऑडिटर हो और आपके ब्रांच में रिजर्व बैंक ने आइडेंटिफाई किया हो, आपके नज़र से छूट गया हो, लेट मी टेल यू, इट्स अ ब्लेमिश ऑन यू। एज अ प्रोफेशन यू हैव टू इंश्योर दैट आपने ऑडिट करने के बाद में उसमें ये मत मुझे बताओ कि हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, पूरा देखते नहीं है। नो, देयर आर क्रिटिकल एरियाज विच यू नीड टू सी वेयर यू कैन नॉट गो फॉर सैम्पलिंग बिकॉज यू हैव टू सेव योर फर्म एंड योर करियर। बैंक तो अपना अपना देखेगी। एक तो जैसे कि मैंने कहा था कि डायरेक्टर रिलेटेड लोन के ऊपर यू हैव टू पे क्रिटिकल अटेंशन। RBI आइडेंटिफाई करती है आपके किसी ध्यान में नहीं आया, ऐसे रिजर्व बैंक आपको बुला के पूछती है, पूछा गया है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जिसमें डायरेक्टर्स को इंटरेस्ट है उन फर्म को जब लोन दिया जाता है तो वो डिक्लेयर होता है या नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बैंक की पॉलिसी क्या है, क्या मेथड्स बैंक ने अडॉप्ट किए गए हैं। डायरेक्टर्स के लोन को राइट ऑफ कर देना या फिर ये लोन के बारे में जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। एवरग्रीन के लिए आपको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। अगर किसी लोन को एवरग्रीन किया गया है, मैं जानता हूँ कि आप सब जानते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ द लोन, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ये देखना है कि आप उसमें अटके नहीं। गवर्नेंस, बोर्ड लेवल बिहेवियर, बोर्ड लेवल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यू हैव टू मेक अ कमेंट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। कल जाके बैंक फटती है ना, ब्लास्ट होती है, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। रिजर्व बैंक की ये अपेक्षाएं हैं जो मैं देखता हूँ कि रिजर्व बैंक के इंस्पेक्टर्स ढूंढते हैं कि ऑडिट के ध्यान में क्यों नहीं आया, वेदर इज स्टैट्यूटरी और कॉन्करेंट। इन्फ्लुएंसिंग, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर इन्फ्लुएंसिंग द क्रेडिट डिसीजंस, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिक्लेरेशन रिकॉर्ड्स अच्छे ढंग से होने बहुत ही ज़रूरी है। डेलीगेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे आप बैंक को एक स्टेटमेंट देने को बोलो कि देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन आवर बैंक। देखो कैसे डरते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेज हाउ यू आर कंट्रोलिंग इट। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। ग्रुप का तो मैंने आपको बोला ही है। डिस्क्लोजर के बारे में बहुत ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन आए हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको लेना ज़रूरी है। और जिसको हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इसके बारे में रिकॉर्ड कीपिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क, और उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो फ्रॉम द रेगुलेटरी एंगल जो चीज़ें आपको पता है उसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की, उसकी वजह भी यही है कि यू नो हाउ टू डू दी अंडरस्टैंड द प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड हाउ दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जिसके ऊपर धनंजय डिटेल में बात भी करने वाला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एज एन ऑडिटर आपको 360 डिग्री एंगल से सोचना है, और वो 360 डिग्री एंगल से जब आप सोचते हो तो कई बार आप उनके स्कोप में ये चीज़ें नहीं लाती है, लेकिन आपको लाना है क्योंकि रिजर्व बैंक आपको पूछ सकता है
ये तो ऐसा हो गया कि गलती करे कोई, सज़ा हो आपको। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुझे लगता है कि लगभग 1.25 घंटा मैं बात कर चुका हूँ। टॉपिक इज़ वेरी सीरियस, टॉपिक इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बट देन द मोर यू आर इन्वॉल्व, यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट। आई विल spend some 10-15 minutes if at all you have any question. Otherwise, I would like to stop at this point. If anybody has any question, please ask to sir. Okay, thank you. Thank you so much. Do any have question? Do anyone have a question? वो लगता है होश खो गए हैं, जो मैंने बता दिया, डरा दिया सबको। मैंने बताया ना, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, बोर्ड में रहेंगे वो। चारा नहीं है ना, जैसे मैंने नहीं, आई टेल यू व्हाट योर द डायरेक्शन ऑफ योर क्वेश्चन। Gujarat itself has got 3,275 directors who were in the board who had completed 10 years. Maharashtra has got more than 5,000. 3 तो राज्यों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, और बाकी 30-40 बैंक हैं, और कुछ कम से कम 10 स्टेट ऐसे है कि जहाँ पे कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही नहीं है। तो इसमें ऐसे उनको भी, उनके पास भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन वो ये नहीं लिख रहे हैं कि भाई अभी इस वक्त जो आपका बोर्ड इलेक्ट होके आ गया है, अगले इलेक्शन में आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो 10 साल के ऊपर जिसका टेन्योर कंटिन्यूसली हो गया है। अरे ये तो छोड़ो, कमर्शियल बैंक में क्या है, 6 साल का टेन्योर है। BR एक्ट बोलता है 8 साल, कमर्शियल बैंकों के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक में 8 साल है, 6 साल है, और उसमें भी कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूसली और इंटरमीडिएटली। हमारे यहाँ बहुत होशियार लोग हैं, 2 साल डायरेक्टर रहेंगे, फिर रिजाइन करेंगे, फिर गैप लेके और फिर से 2 साल आएंगे। कमर्शियल बैंक में 2019 का गाइडेंस ऐसा है, कंटिन्यूसली और इंटरमीडिएटली 6 साल डायरेक्टरशिप के हो गए कि घर बैठो जिंदगी भर के लिए। हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते? ये कहना बहुत आसान है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये वो। व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल्स मनी, हेल्प विद डेमोक्रेसी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों चिंतित हूँ, वजह एक ही है, हम लोगों के पैसे से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। एंड यू आर द वंस हु आर इन द प्रोसेस ऑफ अश्योरेंस फंक्शन। अब मुझे बताओ, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो क्या होगा सेक्टर का? मैं आज सवेरे धनंजय से बात कर रहा था, क्या ये ऑडिटर या फिर ये इंस्पेक्टर लोग आते हैं, इनको है ना, ये बैंक वाले लोग हमेशा काजू बादाम ही रखते हैं, हमारे लिए मोनाको बिस्किट रखते हैं, क्यों ऐसा? उसका जवाब है क्योंकि आपने ये सोच बनाई है कि काजू बादाम नहीं दिए, मुझे मोनाको बिस्किट दिए, अभी इनको तो धोऊंगा मैं। अब फॉरगेट द फन अपार्ट। कहने का मतलब क्या है, चैरिटी बिगिंस एट होम। और मैं भी आज इतना ओपनली क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी संस्था से जुड़ा नहीं हूँ। मैं अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक का एमडी होता, मैं ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मेरा चेयरमैन मेरे को बोलता था, कल से घर बैठ तू, बहुत प्रिंसिपल वाली बात कर रहा है। हमें कहीं शुरुआत करनी चाहिए, समवेयर वी हैव टू मेक अ बिगिनिंग। इफ वी आर डीलिंग विद पीपल्स मनी। मैं और धनंजय जी एक बार बेलगांव में गए थे। आई मीन आई शुड टेल यू दिस किस्सा। हम दोनों बेलगांव में गए थे, 2000 क्या कहते हैं उसको, 21 या 22 की बात होगी। ये BR एक्ट पास हो गया था 2020 का, उसके बाद गए थे। कुछ 40-50 बैंक है बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे एक बंदे का सत्कार किया गया। क्यों मालूम है? वो 40 साल चेयरमैन था एक बैंक का, छोटी बैंक, 100-125 करोड़ की, 40 साल।
हमें तो चक्कर ही आना बाकी था। 40 साल, क्योंकि मुझे हमेशा, हमें आपके बैंक में भी होगा ऐसे, मेरे बैंक में भी था, हाँ, ये बोलता हूँ मैं। अभी इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, क्या कि हमारे बैंक में डायरेक्टर लोग सिटिंग फीस नहीं लेते हैं। ओके, क्यों पागल हो गए हो? समय दे रहे हो बैंक के लिए, क्या समाज सेवा का भूत चढ़ गया है? कुछ तो है जो मुझे नहीं दिख रहा है, आप सोचो। थैंक यू, थैंक यू। As we come to end of this insightful seminar, it is my proud privilege to propose vote of thanks to entire team, learned speaker, and all the staff members who make it happen. First and foremost, I express my sincere gratitude to our Chairman Sir, C.A. Rinkesh Shah Sir, for bringing such a knowledgeable faculty to us. Then I would like to thank Khirwad Sir for sharing his vast experience and insight knowledge about audit and roles and responsibility of auditor, and such minor mistakes that we may unknowingly commit in our audit reporting. So thank you, sir, for being here. And at last, I thank all the participants for overwhelming response in such a short notice.